Good morning, students. Yesterday, we covered a good part of this play, How a Book Saved the Earth. Okay, we were here at this point when Omega reads out the lines of the poem, what she has found in the book, by following the order of think tank. Yes, sir. She reads with great seriousness. She does it with seriousness. Okay, गंभीरता के साथ पढ़ती है. Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. This is a poem, and there is no use of explaining this poem over here because there is no relation of it. It is simply for the sake of impression, on the characters. Now, Oop says, ha ha ha, imagine that. Pretty maids growing in a garden. Pretty maids means the maids, the nokrani, the maid servants, okay? They are growing in a garden. Now, the meaning is somewhat different and they are just taking it something somewhat else, okay? So, think tank alarm. Now, think tank is all shocked and by saying, stop, this is no time for levity. Levity means enjoyment or amusement. Okay, रुक जाओ, अभी हंसी मजाक का कोई टाइम नहीं है. डोंट यू रियलाइज दैट सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी? आपको ये नहीं पता कि ये इन्होंने कितनी बड़ी चीज़ हासिल कर ली है. द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. ओके, अर्थलिंग ने यानी द पीपल दोज हु आर लिविंग ऑन अर्थ हैज डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. ओके, एग्रीकल्चर और माइनिंग को एक साथ कैसे कंबाइन कर लिया है ना. They can actually grow crops of rare metals such as silver, okay, and cockle shells. They can grow high explosives too. Noodles, contact our invasion fleet. Now, with this simple poem, where I think imaginary, like fairy tale, it has been addressed that Mistress Mary, quite contrary, okay, Mistress Mary, who is very opposite. How does your garden grow? I mean, see how does your garden grow with cockle shells and silver bells and pretty maids on in a row. Okay, means everything is there in the garden. Okay, but here they are taking it in a different way. They think that the people on earth have developed farming, and at the same time they have access the mining also, and they are growing everything in their field, in their agriculture field. So they are just trying to access the meaning of this poem, and in this way the think tank, who is the chief of army, okay, is all alarmed or is all shocked that the people on earth are more developed than the people on the Mars. Okay, so he just tried to guess the meaning of it, and he says that they can actually grow crops of rare metals such as silver and cockle shells, and they can grow high explosive. It means that they have all other skills to grow एक्सप्लोसिव ऑल्सो. वो एक्सप्लोसिव या बम भी पैदा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने खेतों में. नूडल कॉन्टेक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट. अब इस चीज़ से थिंक टैंक को घबराहट हो जाती है कि कहीं अर्थ वाले हम लोगों से ज़्यादा खतरनाक हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही नुकसान कर दें, भागो यहाँ से. फिर नूडल अपने असिस्टेंट को वो ऑर्डर देता है, कॉन्टेक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, है ना, contact the invasion fleet, the fleet that has been over there. Now Noodle says they are ready to go down and take our earth. Okay sir, सर वो तो तैयार हैं अटैक करने के लिए, अर्थ को अटैक करने के लिए. थिंक टैंक सेज टेल देम टू होल्ड. उन्हें कहो रुक जाने के लिए. टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ. उन्हें ये बताओ कि एक नई इन्फॉर्मेशन आई है अर्थ के बारे में. आयोटा ट्रांसक्राइब. आयोटा उसको बताओ क्या है, उसको ट्रांसक्राइब करो. देन आयोटा, यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, बहुत सीरियसली पढ़ता है. हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून,
The little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with a spoon. In junior classes, particularly rhymes, because the student enjoy this kind of thing. Okay, then cow is coming from the moon. Okay, or jump over the moon. It's all unrealistic, but yes, in the rhymes, these things are clearly visible. So, hey diddle diddle, the cat and the fiddle. Okay, the cow jumped over the moon. Cow is jumping over the moon. The little dog laughed to see such a sport. Little dog is enjoying to see this kind of sport or this kind of game. And the dish ran away with a spoon. और डिश जो है खुद ही भाग जा रहा है स्पून के साथ. कोई तस्तरी खुद स्पून के साथ भाग जाए. सो दिस इज अ पोएम. वी ऑल अंडरस्टैंड इट. ओके, बट Oop, Iota is reading out the poem, and Oops is laughing, हंसते हुए. The dish ran away with the spoon. Dish कैसे spoon के साथ भाग जाएगा? She is enjoying. Okay. Now Think Tank says, cease laughter. Cease laughter means stop laughing. रोक, हंसना बंद करो. Desist, है ना? Stop yourself from it. This is more and more alarming. This is more and more alarming means shocking or it's a threatening. हमारे लिए खतरा है. The earthlings have reached a high level of civilization. इसका मतलब, इस पोएम का मतलब ये है कि अर्थ के रहने वाले लोगों ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है सिविलाइजेशन में. Didn't you hear? क्या तुमने सुना नहीं? They have taught their domesticated animals musical culture. उन्होंने अपने पालतू जानवरों को म्यूजिकल कल्चर सिखाया. एंड स्पेस टेक्निक, उनको स्पेस टेक्निक भी सिखाई है. इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. उनके डॉग्स को भी हंसना आता है, उनको भी सेंस ऑफ ह्यूमर की समझ है. वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लाफिंग एन इंटर प्लानिटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस. और ऐसे इस मौके पे दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानिटरी. और वो हो सकता है कि एक लॉन्च कर रहे हों एक ऐसा अटैक जो कि इंटर प्लानट, यानी एक प्लानट से दूसरे प्लानट पे अटैक करने का एक उनकी सोच हो. सो दे मे बी लॉन्चिंग एंड दे मे बी प्लानिंग एन इंटर प्लानिटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज. और हो सकता है उनके काउज ढेर सारे इकट्ठे होके और एक प्लानट से दूसरे प्लानट पे अटैक कर सकते हैं. जब उनके ऊपर मून से छलांग लगा सकते हैं तो प्लानट पे तो आ ही सकते हैं. नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट एंड देन जस्ट बी केयरफुल. The invasion fleet, the fleet that is going to attack on Earth. Okay, no invasion today. Oh, and then he is ordering his staff, है ना, not to attack on Earth. No invasion means attack. Okay, no invasion today. Oh, transcribe the next quote, and then he just trying to know the thing what is happening over there on Earth through these poems. In fact, these are poems, and we all understand these things, but it is all alarming or threatening for the people on Mars. Okay, so that is the humor in this play. Oops say yes sir reading. Humpy Dumpy sat on a wall, and you know it, very common poem. Humpy Dumpy had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpy Dumpy together again. Now it is again funny. Humpy Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. वॉल पे बैठे थे, गिर गए. जितने भी किंग के हॉर्सेस थे और जितने भी किंग के लोग थे, कैनॉट पुट हम्पी डम्पी टुगेदर अगेन, उनको फिर से वापस नहीं कर पाया. सो ओह लुक सर, हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्पटी. देखिए सर, यहाँ पे एक पिक्चर डिस्क्राइब की गई है हम्टी और डम्पटी की. वाई सर, ही लुक्स लाइक. अच्छा, वेन एवर यू माइट हैव come across this poem Humpty and Dumpty, you must have seen that they are funny. They are shown as funny character, like both of them are sitting on a wall, and their face is looking like a face looks like a egg, a big egg, and in comparison to their abdomen and all other parts of their body. यानी उनका धड़ चेहरे से अगर देखा जाए तो शरीर के बाकी हिस्से छोटे हैं और जो सिर है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है. सो देयर फेस इज ऑल सिमिलर टू द फेस ऑफ थिंक टैंक एंड ऑल अदर क्रीचर्स ऑफ मार्स. तो यहाँ पे उनको और भी शक हो जाता है कि यार हम्टी डम्पटी जो कि चेहरे हम लोग की तरह दिखाई पड़ रहे हैं,
उन लोगों के साथ ये हुआ और वो फिर मर गए और फिर उनको कोई उठा नहीं पाया, ठीक है ना। सो लुक हियर सर, ही इज़ अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, एंड वाई सर ही लुक्स लाइक कैसे दिखता है वो, कैसे दिखता है? टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स द थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। और उस हम्प्टी डम्प्टी की जो पिक्चर बनी हुई है उस पोयम में, उसको ऑडियंस की तरफ दिखाता है और थिंक टैंक की तरफ दिखाता है कि देख लो ये लोग कैसे हैं। नाउ थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड। अब थिंक टैंक को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाता है और अपना सर पकड़ लेता है। अरे इट्स मी, ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, ये तो मेरा वैसी बड़ा सा बलून ब्रेन है। द earthlings have seen me, it means कि earthlings have seen me, the people on earth have seen me and they are after me and they are just trying to chase me. After me means हम लोग के पीछे पड़े हैं, ठीक है ना। had a great fall, बहुत बड़ा फॉल हुआ। that means they plan to capture Mars central control and me. It means कि they are going to capture, they are going to attack the Mars central control and me also. इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो अटैक है मार्स पे। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, हम लोग के लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो जिससे स्पेस में जाया जा सके, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ स्पेस क्राफ्ट विट लुक्स लाइक अ कैप्सूल, जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं दवा के तौर पे, उसी के शेप का कोई बड़ा सा पार्ट जिसको स्पेस में ले जाया जा सके। तो हियर he ordered his assistant Noodle, prepare a space capsule for me. Okay, I must escape without delay. मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, और मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो, मैं इस प्लेनेट पे ही नहीं रहूँगा, अपने मार्स पे। आई मस्ट escape, मुझे यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए बिना देरी किए हुए। स्पेस पीपल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, है ना। एंड देन ही आस्क the people, those who were there to attack on earth, he ordered them to leave earth at once। वो ऑर्डर करता है कि जो लोग भी अर्थ के लिए गए हुए हैं वो वहाँ से चल दें, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। लेकिन चलने से पहले इस बात का ध्यान दें कि वॉट एवर फुटप्रिंट्स, वॉट एवर सिम्बल्स ऑफ योर विजिट इज़ देयर, यानी आप जो भी गए हैं कोई भी ऐसा मार्क वहाँ छोड़ कर नहीं आना जिससे तुम्हारे बारे में कोई शक करे। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो। ओके, अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनके बारे में हम लोगों को पता है या मुझे पता है। ओमेगा आयोटा एंड ओप रस अबाउट, ओमेगा आयोटा और ओप दौड़ के भागते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्फ, वापस से बुक्स को सेल्फ पे रख देते हैं। नूडल से वेयर शैल वी गो सर, हम लोग कहाँ जाएंगे सर। थिंक टैंक 100 मिलियंस माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हम लोग इस मार्स से 100 मिलियन माइल्स दूर जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द इंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, उस पूरे इन्वेजन फ्लीट को ऑर्डर करो कि वो पूरे मार्स के जितना जहाँ जहाँ भी हैं उस पूरे मार्स को छोड़ दें, क्योंकि हम लोग यहाँ भी खतरे में हैं। वी आर हेडिंग फॉर अल्फ़ा सेंचुरी, और सबसे बोलो कि हम लोग अल्फ़ा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। इट्स ए 100 मिलियन माइल्स अवे, विच इज़ 100 मिलियन माइल्स अवे है यहाँ से। ओमेगा आयोटा एंड ओप रन ऑफ लाइट एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट। ओके, देन ओमेगा आयोटा एंड ओप रन ऑफ लाइट राइट, वो राइट की तरफ तेजी से भागते हैं। एज नूडल हेल्प्स, नूडल उनकी मदद थिंक टैंक की मदद करता है ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जाने के लिए। एंड द कर्टन क्लोजेस, और इतने पे पर्दा गिरता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन टाउन राइट, और इस तरह से फिर से स्पॉटलाइट जो है वो हिस्टोरियन जो प्ले के शुरू में थी उस पर फिर से फोकस करता है। नाउ हिस्टोरियन से चकलिंग, यानी ट्राइंग टू से समथिंग बिफोर हर स्टेटमेंट। And that's how one dusty old books of nursery rhymes save the world from a Martian invasion. And in this way, audience, you must have understood how the one dusty means which is full of dust, old पुरानी book of nursery rhymes की book ने save the world from the in Martian invasion, हमारी इस दुनिया को, हमारे इस वर्ल्ड को मार्स के इन्वेजन से बचाया। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी, द 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपन,
कि 25th सेंचुरी जो कि 500 साल आज के से 500 साल पहले की बात है. Sorry, as you know, in the 25th century, 500 years after all this, यानी इस घटना के 500 साल के बाद जब हम लोग 25th सेंचुरी में हैं, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम कॉन्टैक्ट विथ मार्स. ओके, हमने फिर से कांटेक्ट किया है मार्स से. हम अर्थलिंग यानी अर्थ के रहने वाले रहने वाले लोगों ने फिर से मार्स से कांटेक्ट किया. एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और हम मार्शियन के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गए. बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन. ओके, उस समय तक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो बहुत ही महान और पावरफुल थिंक टैंक था, उसको रिप्लेस कर दिया किसने? क्लेवर मार्शियंस ने, जो समझदार और बहुत ही क्लेवर मार्शियन थे. द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, उसका जो असिस्टेंट था वही आगे किंग बन गया, जो कि बहुत ही वाइज और वंडरफुल था. और यस, वी टॉट द मार्शियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स. और हम अर्थ के रहने वालों ने मार्शियंस को बताया कि भैया सैंडविच और बुक्स में क्या डिफरेंस होता है. वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, हमने उनको पढ़ना भी सिखाया. एंड वी इस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हम लोगों ने एक मॉडल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की उनके कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में. बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड. लेकिन अभी भी एक बुक है जो आज तक उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि उस बुक्स को फिर से पढ़ पाएँ. एंड यू हैव गेस्ड इट, आई थिंक आपने गेस भी कर लिया है. इट इज़ मदर गूस. ये मदर गूस है. सी बाउज एंड एग्जिट राइट, वो झुकती है और फिर राइट की तरफ निकल जाती है. एंड इन दिस वे कर्टन फॉल्स. Written by Clear Baiko. With this, we come to an end of this play. All the difficult words are there. Okay, you might have you might understand it better because I have already explained them. But if you have any confusion for it, you can go for these things again. Okay, now questions are there. You have to do it in your fair notebook. Okay. Okay, thank you.